Everybody, I'm Dr. Mukesh Parikh and I'm present with my live class. Kindly show your presence so that we can start the class. जुड़ जाइए सब लोग फटाफट से. Come and show your presence. Good morning. I can see some of you. Good morning, good morning. Good morning. I could not take your class. Actually, I was not feeling well for last 2 days, Sunday and Monday. I had a mild fever. I was running temperature actually, and continuous cough was also there. So, so, uh, so I thought like I should take rest. आज भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है. आज मैंने शेव वगैरह करके आपके पास आ गया हूँ पढ़ाने के लिए. The danger of corona is looming large. Everybody knows that, and the best cure of this disease is to prevent. I think prevention is better than cure, as we all know. तो थोड़ा सा भी तबीयत खराब होते ही सबसे पहले यही डर लगता है कहीं कोरोना तो नहीं है. So still I'm not feeling very well. फिर भी हम पढ़ते हैं because अच्छा एग्जाम थोड़ा सा और आगे खिसक गए. सबको पता चल गया होगा that they will start from the 24th of this month. So that's good, for the serious students if they get more extension. हालांकि जितना टाइम मिले उतना ही कम होता है. It's such a big exam, it's such a vast course is there. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Today write down, but today, to understand the concept fully, you have to come to my website mukeshparikh.com or englishcosmos.org, and simultaneously you need to have 2 phones either or 1 laptop so that you can directly see me also speaking and read from my blog also. Good morning Sujit Mandal ji, good morning. अच्छा पहले यस लिख के बताइए कि कैन यू गेट एक्सेस टू माय ब्लॉग ऑन माय वेबसाइट mukeshparikh.com. क्योंकि मुझे कल भी कई बच्चे पूछ रहे थे कि आपका ब्लॉग कहाँ है, आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है. जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चैरिटी के मूड में हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेना चाह रहा हूँ लाइव, और उनको मैं अपने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ. This class will also be uploaded on YouTube, and those who will watch me on YouTube after this class, I request them, if you are watching me, you can like me. You can push the like button. Then you can write some good comments at the end of the session. I think you should write that. Whatever you liked, whatever you did not like, you should write such things, because writing comments will ultimately make me know that what you feel about the class and all. Clear? अच्छा पहले यस लिख के बताइए कि आप लोग ब्लॉग पे आ गए हो क्या, और मुझे लिख के बताइए व्हाट इज रिटन देयर ऑन द ब्लॉग, एंड यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट क्लास आई एम गोइंग टू टेक टुडे. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू हियर मी? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. टेल मी व्हाट इज रिटन देयर. देखिए इंग्लिश लिटरेचर में 2 टर्म्स बहुत फेमस हैं, एंड वी नीड टू पे अटेंशन टू दीज 2 टर्म्स. क्लियर? The first one is Bildungsroman. Bildungsroman. I'm sorry, I'll be coughing today, and I beg your pardon for your distraction with my coughing. Bildungsroman. Mr. S.N. Malik, Sunil, Nishad, all I request Sujit Mandal, kindly go. हम लोग बिल्डुंग्सरोमन पढ़ रहे हैं, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय वेबसाइट. यू गो टू माय वेबसाइट mukeshparikh.com और englishcosmos.org, englishcosmos.org और mukeshparikh.com. ठीक है? There if you go, you will directly find 2 or 3 entries today on my blog. You can easily search my blog. जैसे आप मेरी वेबसाइट खोलोगे आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिख जाएंगी. उसमें एक ब्लॉग भी एक हेडिंग है. उस ब्लॉग पे जाइए तो आपको बिल्डुंग्सरोमन लिखा हुआ दिखेगा, बिकॉज अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. मैं बोर्ड पे लिख करके समझाऊंगा. इट विल टेक अ लॉट मच टाइम इन राइटिंग एंड रबिंग एंड ऑल.
So for a better class, it is very important that if something is already written and then the teacher read something or say explain something. अब यस लिख के बताइए दैट हैव यू कम टू दैट. अगर दो फोन नहीं है तो अपने फोन की जो स्क्रीन है उसको स्प्लिट कर लीजिए. चलिए मैं पढ़ता हूं. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टर्म्स. वन इज बिल्डुंग्सरोमन एंड द सेकेंड वन इज कुंस्टलरोमन. आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में. एक होती है बिल्डुंग्सरोमन, उस पर बार बार क्वेश्चन आते हैं और मुझे याद है कुछ क्लासेस पहले मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे आपको बात कही थी. कुंस्टलरोमन और बिल्डुंग्सरोमन ये दोनों जर्मन टर्म्स हैं. BILDUNGSROMAN. बिल्डुंग्सरोमन. बिल्डुंग्स एक वर्ड है, अगर आप इसको डिक्शनरी में देखोगे, लिटरेरी टर्म्स की जो डिक्शनरीज होती हैं, यू विल फाइंड दैट इट मीन इन जर्मन इट मीन्स एजुकेशन और नॉलेज. क्लियर. तो बिल्डुंग्सरोमन एक नॉवल होता है. इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉवल एक्चुअली, इन विच द राइटर शोज अ कैरेक्टर. वन जरूरी नहीं है कि वो बहुत कम उम्र से जैसे बचपन से लेकर के और जवानी तक वो एजुकेशन लेता है. अब एजुकेशन हियर डज नॉट मीन द एजुकेशन इन द लिटरेरी सेंस. इट्स नॉट अबाउट स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन. एजुकेशन हियर मीन्स टू से knowledge of life, knowledge of people, knowledge of in depth like what life is. So that kind of novel is called Bildungsroman. अब अगर हम एग्जाम के ऊपर जाएं तो ऐसे टफ क्वेश्चंस कई बार वो पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 नॉवेल्स विच वन इज नॉट अ बिल्डुंग्सरोमन और विच वन इज अ बिल्डुंग्सरोमन. ठीक है. तो आप अगर मेरे वेबसाइट पे आ गए तो मैं वहां से पढ़ रहा हूं कि बिल्डुंग्सरोमन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉवल that focuses on the psychological and moral growth of its main character. That is also a correct definition, because when we start understanding the people around us, so that exactly means our psychological growth. क्योंकि आपको पता है कि हम लोग बिल्कुल प्लेन शीट होते हैं. आप सबको मालूम है जॉन लॉक ने क्या कहा है कि जो माइंड है वो एक क्लीन स्लेट है. अच्छा, कितने बच्चों को पता है क्लास में कि जॉन लॉक का अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वो जो ऐसे है उनका जॉन लॉक का, वो उस ऐसे में ह्यूमन माइंड को क्या बोलते हैं बताओ. किसी को पता हो तो बताओ. ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट? अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं बोलता हूं. लिखिए आप लोग. इसको बोलते हैं टेबुला रासा. प्रोनाउंसिएशन राजे है लेकिन उसको लिखा जाता है रासा. टेबुला TABULA. टेबुला RASA. ओके. We pronounce it like Raze. I learned it somewhere, and but the way we write it is RASA. Okay, so tabula rasa. Tabula rasa means clean slate, and in that essay, that writer says, John Locke, that we try to understand this world by having sense impressions on our body, on our mind. Okay, so वो जो नॉवल है, वो जो ऐसे है, इसीलिए उसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक बेसिक है दैट नॉवल राइटिंग को हमेशा लाइटली नहीं लेना चाहिए. नॉवल इज जस्ट नॉट अ स्टोरी. क्लियर. नॉवल का मतलब होता है, एक बात मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देता हूं इसकी, कि क्यों लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए नॉवल इंपॉर्टेंट माना जाता है. E.M. फोस्टर का एक नॉन फिक्शनल बुक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज टॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड. लिख लीजिए. E.M. फोस्टर की एक बुक है, द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल. लिख लीजिए. एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल्स. सुमन दास, मैंने ब्लैंक स्टेट नहीं बोला है. क्लीन स्लेट एक वर्ड है, दैट इज द लिटिल मीनिंग. ओके, चलिए क्या बात कर रहे थे हम लोग, बताइए. कि एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल. अब मैं दूसरे एग्जांपल पे आ गया हूं. मैं बिल्डुंग्सरोमन से सीधा जॉन लॉक पे आया. जॉन लॉक का मैंने टेबुला राजे बताया है ना. उसके बाद में आई हैव स्किप्ड टू दिस E.M. फोस्टर. दैट काइंड ऑफ क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इन वन कॉन्सेप्ट इफ यू लर्न 4-5 कॉन्सेप्ट्स देन ओके, देन इट इज ओके अकॉर्डिंग टू अ टीचर. चलिए, E.M. फोस्टर की बुक है द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल. ओके, उसके 7 पार्ट्स उन्होंने किए हैं. उसमें ही टॉक्स अबाउट दैट हमारी जो लाइफ है उसमें हम सीखते कैसे. अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे तो जैसे आई रिचर्ड्स ने कहा है कि बुक इज समथिंग अ टूल एन इंजन टू लर्न विद. लिख लीजिए. आई रिचर्ड्स का नाम सुना है ना. आई रिचर्ड्स हैज सेड दैट बुक इज समथिंग, बुक इज अ मशीन, बुक इज एन इंजन with which we try to know things.
तो अगर आप बिना बुक पढ़े लाइफ में ऐसे ही जी रहे हो तो आपको बहुत सारी बातें पता नहीं चलती हैं। ओके, क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में, किसी भी चीज के कांटेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए है और सपोज वी आर नॉट रिफ्लेक्टिव, वी हैव नॉट बीन गिफ्टेड विद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक वर्ड है, लिखिए इसको, रिफ्लेक्शन भी समझा देता हूं आपको। कोई भी फिक्शन, कोई भी नॉवल, कोई भी स्टोरी, कोई ड्रामा, कोई पोइट्री, लिटरेचर एंड पेंटिंग और एनी आर्ट फॉर्म इज इनकम्प्लीट विदाउट रिफ्लेक्शन। ओके, अगर आप, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मनन, सोचना, टू ब्रूड अबाउट, ओके, कंटेम्पलेट करना, सोचना। सो द वन हु इज राइटिंग अ फिक्शन, ओके, in that fiction he has created certain characters, maybe real or maybe imaginary, okay, but you know, by that microcosm of our macrocosm, now I'm again using two terms, हमारा जो एक वृहद कॉम्प्रिहेंसिव बिग संसार है, इसका एक छोटा रूप हमें देखने को मिलता है नॉवल में, ड्रामा में, स्टोरी में, है ना। पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं। I will try to tell you about all these things, but better me complete my lecture first of all, Sujit Mandal. Okay, so what I was talking about, that you know, throughout our life, like for example, you come to meet me, okay, then you will be present in my class, clear, but you won't be able to understand me properly. But if suppose a book is written on me, then you know, you can come to know about, you know, whatever is going on in my mind, psychologically also, physically also. You know, suppose somebody tells you my growth, like, you know, from childhood to you know, my youth, or say my old age, what things I passed through. It means a novel tells you a macrocosm of a person's microcosm, clear? So आप एक मिनिएचर संसार को पढ़ रहे हैं जब आप एक बुक खोल के पढ़ते हैं, जब एक नॉवल खोल के पढ़ते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप, जिस आदमी ने उसको लिखा है, उसने लाइफ को इमेजिनेशन से काफी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। और उस आदमी, हम सब लोग बचपन से लेके अब तक धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज को गेन करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, ओके, साइकोलॉजिकली, मॉरली ऑल्सो, कि व्हाट इज मॉरली गुड फॉर अस, ओके। और हम सबका अपना एक खुद का परसेप्शन वी ट्राई टू डेवलप आवर ओन परसेप्शन, ठीक है। तो ये जो चीजें हम देखते हैं, अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके साथ जिंदगी में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, so then you become a maturer person than the other person. It means it is very important when we read a Bildungsroman, you know, so we come to know about somebody's growth, psychological growth, moral growth, social growth, economic growth, और वो कैसे एडजस्ट करता है, और उसके जो आइडियाज डेवलप होते हैं, उनकी ये कहानी होती है। सो नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम माय वेबसाइट। मेरे वेबसाइट पे आ जाइए, mukeshparikh.com या englishcosmos.org। उस पे मेरे ब्लॉग पे मैंने आज काफी सारी चीजें अपलोड की है, और मैंने कुछ अपने बुक्स में से फोटोज भी खींच करके अपलोड किए, वहीं से मैं रीड करूंगा। तो बेटर है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वहां आ जाइए, ठीक है। मैं अगली लाइन पढ़ रहा हूं, यूथ टू एडल्टहुड, उसमें दिखाते हैं। उसके बाद है, अ बिल्डुंग्सरोमन इज अ स्टोरी ऑफ द ग्रोइंग अप ऑफ अ सेंसिटिव पर्सन हु लुक्स फॉर आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. Generally, such a novel starts with a loss or a tragedy. This is very, very important. For example, today I'm going to give you an example of The Way of All Flesh, okay, a novel. Or suppose we talk about Emma, or we talk about Great Expectations, okay, or we talk about, say, Jane Eyre, okay, all these world famous Bildungsromans. तो हमें ये पता चलता है कि नॉवल के बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, या तो किसी के फादर ने किसी को निकाल दिया है, या उसके पेरेंट्स मर गए हैं, वो ऑर्फन हो गया है या हो गई है, ठीक है, या उसका कुछ परिवार के साथ कुछ मनमुटाव हो गया है, ओके। जैसे अगर हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देखें, तो जो हमारा हीरो है फिलिप पिरिप, जिसको शॉर्ट में पिप बोलते हैं, यू कम टू नो दैट ही इज लिविंग विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, and his parents are dead, clear? So how he perceives the world, his growth as a human being, his growth as a sensitive brother, his growth as a sensitive lover, his growth as a sensitive student, his growth as a sensitive artist, okay, and he starts to understand the whole world, you know, steadily,
एंड स्लोली एंड स्टेडली। तो वो जो ग्रोथ हम देखते हैं वो जरूरी तभी है जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो, मतलब उस नॉवल के कैरेक्टर के साथ, दैट डिस्टर्ब्स द मेन कैरेक्टर इमोशनली। ओके, वो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है, यहां से कहानी हमेशा स्टार्ट होती है। ही और शी लीव्स ऑन अ जर्नी टू फिल दैट वैक्यूम, और वो जो जर्नी उसकी स्टार्ट होती है, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, तो हम देखते हैं कि उसको मिस हैविशम के यहाँ पे एक जेंटलमैन बनने के लिए उसको वहां छोड़ दिया जाता है। सो दैट इज अ जर्नी दैट ही लीव्स हिज होम। क्लियर? सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट ड्यूरिंग द जर्नी द प्रोटैगनिस्ट गेन्स मैच्योरिटी। Now, this is what, like, he physically, he might not be that much mature, but, emotionally, he gets to know the world around him. Clear? That's why we call it like, he knows the ways of the world. What is the meaning of the ways of the world? That he tries to understand now that what the world is around us. And gradually and with difficulty. It's not very easy for a person. We see many stories also. Clear? In films also. Usually the plot depicts a conflict between the protagonist and the values of society. Now there comes a great tussle between the values of society and अगर मैं वर्ल्ड फेमस नॉवेल्स के नाम लूं तो आज मैं आपके सामने बहुत सारे, जैसे द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, देखिए उसका सबटाइटल लिखिए, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, हेनरी फील्डिंग का लिखा हुआ। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स है क्लास में जिन्होंने हेनरी फील्डिंग के बारे में पढ़ा है? हेनरी फील्डिंग के इस नॉवल में, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, जिसका सबटाइटल है अ फाउंडलिंग, लिख लीजिए अ फाउंडलिंग, FOUNDLING। ये जो नॉवल है, इसके बारे में उन्होंने प्रेफिस में लिखा है दैट इट्स अ बिल्डुंग्सरोमन एंड इट इज ऑल्सो अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। अब ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है, लिखते जाइए, अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। सो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ एपिक जर्नी। एपिक जर्नी आप क्या होता है, आप कोई भी एपिक उठा के देखिए, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेजेडी एंड देन द प्रोटैगनिस्ट सेट्स आउट फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी एंड देन ही ट्राइज टू नो द वर्ल्ड अराउंड हिम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है फील्डिंग का। क्या नाम लिया मैंने? हेनरी फील्डिंग का द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसका अच्छा, ये एक नॉवल, एक पैरोडी है, ये भी आप लिख लीजिए, लिखो, ये नॉवल एक पैरोडी है। अब किसकी पैरोडी है? अगर आपने ये फिर बहुत ज्यादा भटकना हो जाएगा, डाइग्रेशन हो जाएगा, आप इतना लिख लीजिए आज तो, और आप इसको लिख लीजिए दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडे द कंप्लीट स्टोरी ऑफ हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट पे, डेविड कॉपरफील्ड, जिसका मैं अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन चार्ल्स डिकेंस का दूसरे नॉवल का मैंने नाम ले दिया था, डेविड कॉपरफील्ड। ओके, डेविड कॉपरफील्ड का आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें उसकी पूरी जर्नी दिखा रखी है, किस तरह से कि डेविड कॉपरफील्ड जो है बचपन से लेके मैच्योर होते वक्त कैसे उसकी माँ जो है वो रीमैरी कर लेती है बिकॉज हिज फादर डाइज। तो किस तरह से उसका फादर उसको एक स्कूल में भेज देता है, बोर्डिंग स्कूल में, वहां पे कितना ज्यादा उसकी पिटाई होती है। ओके, फिर वो जब बड़ा होकर के आता है, किस तरह से उसकी इनहेरिटेंस लॉस हो जाती है, ऐसे करके वी कम टू नो दैट ही ट्राइज टू नो द वर्ल्ड अराउंड हिम। इट्स क्वाइट ऑटोबायोग्राफिकल ऑल्सो, ये भी लिख लीजिए, चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड इज ऑल्सो बिट ऑटोबायोग्राफिकल। उसके बाद में मैंने लिस्ट में जरूर शामिल किया है, बट आई वुड लाइक टू टीच यू अनदर टर्म। लिखिए, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ये जेम्स जॉयस का लिखा हुआ नॉवल है, लेकिन इसको हम लोग बिल्डुंग्सरोमन की जगह देयर इज अनदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड कुंस्टलरोमन। लिख लो, कुंस्टलरोमन, KUNSTLEROMAN, कुंस्टलरोमन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द टर्म कुंस्टलरोमन? लिख के बताइए, यस या नो में जवाब दीजिए, सो दैट इफ यू नो आई कम टू नो whether you know about this term Kunstelroman or not. In the very starting of this class, I already told you that there are two terms, Bildungsroman and Kunstelroman. So how many of you are Bildungsroman has already been explained in this class. Now I'm talking about Kunstelroman. Can you hear me? Is the connection proper? And kindly write and tell me. Spare the rod and spoil the child. मधुसूदन, ये क्या लिख दिया आपने? What is this?
ये तो कुछ भी लाइन हो गई। कुंस्टल रोमन, KUNSTLEROMAN, कुंस्टल रोमन। ऐसे तो क्लास हमेशा मैं ही बताता रहूंगा, आपकी तरफ से कोई आंसर ही नहीं आता है कभी। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। If you know the answer, kindly write so that I can see your answer. Are you aware about Kunstal Roman? Okay, Sangeeta says yes. Okay, there are some answers coming yes, some says no. Doesn't matter. Write down. Kunstal Roman का आंसर लिखिए। The growth of an artist or the maturity of an artist. The growth, a novel in which growth of an artist is shown. उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जर्मन में बोलते हैं कुंस्टल रोमन, एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिल्डुंग्सरोमन। लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, करेक्ट, अनन्या हैज रिटन वेरी गुड आंसर फॉर दैट। नाउ लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज कुंस्टल रोमन। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन हमने देखा है, तो स्टीफन डिडालस इसका जो मेन कैरेक्टर होता है, आपने नोटिस किया होगा कि उसके चाइल्डहुड से लेकर के उसकी मेच्योरिटी तक का पीरियड दिखाया गया उसमें। ठीक है, अब उसमें क्या दिखाया कि किस तरह से उसको डाला जाता है कि वो एक प्रीस्ट बने, बट देन ही कम्स आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिलेमा इन हिज लाइफ एंड ही बिकम्स एन आर्टिस्ट। ओके, एंड देन ही लीव्स डबलिन। तो उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आपको एक मेच्योर आर्टिस्ट कैसे बनता है। बताइए, एक मेच्योर आर्टिस्ट कौन होता है? एक मेच्योर आर्टिस्ट होता है वन हु कम्स आउट ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ नेशनैलिटी, इज नॉट मेंट फॉर अ पर्टिकुलर नेशन। क्लियर, ही इज फॉर ऑल, ही बिकम्स ग्लोबल। ओके, तो वो ये, लेकिन आपकी मेच्योरिटी धीरे धीरे जब आपकी ग्रोथ होगी एज एन आर्टिस्ट, ओनली देन, अदरवाइज यू विल फील दैट यू आर एन आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और अमेरिका और इंग्लैंड, then there will be no bonhomie in you. Clear, because you are an artist and still you are tied with the clutches of your nationality. It means देखिए, नेशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, पेट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है जब हम लोग हाई लेवल का लिटरेचर पढ़ते हैं। दोबारा बताऊं, nationality and patriotism is not considered good, because somewhere when we are so much patriotic, okay, then we keep blaming the other people who are our neighbors, and we say that we are good but they are not good. Clear? So one has to come out of that mentality. That is maturity, okay, of an artist. Next है कि उसको he or she should come out of the narrow boundaries of religion. जैसे इस नॉवल की पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में हम देखते हैं कि ही इज अ कैथलिक, ओके, बट सॉरी, ही इज अ प्रोटेस्टेंट, बट he comes out of the clutches of this again the great chasm between Catholic and Protestants and all. Okay, so धीरे धीरे एक kind of irreligious तो मैं नहीं बोलूंगा, but he tries to respect every religion. Okay, that kind of understanding he develops at the end of the novel. Clear? And then he also comes out of the boundaries of gender. जैसे पूरे नॉवल में ग्रोथ दिखा रखी है कि he feels that he should visit prostitutes and all. Clear? But day by day there are so many epiphanies are shown in the novel. अब यहाँ पे पहले मैं एक टर्म और यूज कर लूँ, उसके बाद आऊंगा इस पे। एक एपिफेनी पे बार बार नेट में क्वेश्चन आता है। एपिफेनी मैंने पहले किसी लेक्चर में यूज किया था, EPIPHANY। एपिफेनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन। ओके, तो उसको एक स्पिरिचुअल सडन रियलाइजेशन होते हैं पूरे नॉवल में, एंड देन ही कम्स आउट ऑफ दीज रिजिड बाउंड्रीज ऑफ मेल एंड फीमेल। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनक हो जाता है और या वो असेक्सुअल हो जाता है। इट मीन्स समवेयर someone starts understanding the plights of a female also. Being a male, he becomes such a cherished figure, such a sensitive figure that for him masculine and feminine are not the boundaries, rigid boundaries. He can divert his attention and can feel the pains of both and can feel the pleasures of both. Clear? So इतना अगर ग्रोथ हो जाए एक आर्टिस्ट की, then he can see that something is there in the art.
आर्ट एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने के लिए हमें अलग से एक लेक्चर लेना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिल्डिंग्सरोमन. तो बिल्डिंग्सरोमन में साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में, जैसे मैंने आपको एक नया टर्म दिया कुंस्टलरोमन, और वो इस नॉवल में जेम्स जॉयस ने दिखाया है. उसके बाद में कजाओ इशिगुरु का एक, जिनको 2017 में नोबेल प्राइज मिला था, उनका एक नॉवल का नाम लिखा हुआ है. बताइए कौन सा नाम लिखा हुआ है मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर? नेवर लेट मी गो. लिख लीजिए, नेवर लेट मी गो. ये भी एक बहुत ज्यादा, इसमें जो हमारा हीरो है उसका नाम लिख लीजिए, लड़की है कैथी. इट्स अ स्टोरी ऑफ कैथी. क्लियर? एंड कैथी कम्स टू नो अबाउट हर फाउंडेशंस इन हर लाइफ. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेटर नोन नॉवेल्स. अब मैंने इसके अलावा, अदर देन दैट, आई हैव अगेन गिवन यू मोर देन 6 नॉवेल्स. उसकी कैटेगरीज पे आइए. Some I will be just talking about, some I'll be asking you to read the stories in detail. Okay, write down. आपने गेथे का नाम सुना होगा, जर्मन राइटर है. राइट डाउन गेथे. पूरा नाम तो है जोहान वॉल्फगैंग वॉन गेथे. ओके, GOETHE, गेथे. गेथे इज अ वेरी फेमस नॉवल, विल्हेम मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप. राइट डाउन. गेथे इज वर्ल्ड फेमस नॉवल, विल्हेम, WILHELM, विलहेल्म. जिसको स्पेलिंग प्रॉब्लम है वो मेरे ब्लॉग पे चले जाइए. आई एम रीडिंग फ्रॉम माई ब्लॉग. आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड दीज नॉवेल्स देयर. ओके, और वट एवर यू वांट टू रीड फ्रॉम देम, और कितना आपको नेट के लिए जरूरत है उतना मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है. विलहेल्म मिस्टर्स, MEISTER', मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप. ठीक है. ओके, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1795-96. इसमें ये जो हीरो है उसी का नाम है विल्हेल्म मिस्टर्स. ओके, इसकी जर्नी दिखा रखी है सेल्फ रियलाइजेशन की. ओके, किस तरह से ये अपनी लाइफ से, ये जो बूर्जुआ फैमिलीज होती हैं जिनके बिजनेसमैन का बेटा है ये, और वो उनसे कैसे बाहर निकल के अपना थिएट्रिकल रोमांस. बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है बच्चों. इसमें हैमलेट का डिटेल आता है, लिख लीजिए. देयर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ हैमलेट इन दिस नॉवल. ओके, लिख लीजिए. देयर कम्स द होल रेफरेंसेस ऑफ एलिजाबेथन एज एंड हैमलेट. In last class also we talked about a particular novel where there was a discussion of Hamlet. It is considered that Hamlet is the most researched novel. चलिए आप दोबारा बताइए मुझे, आपने किस नॉवल का नाम लिखा? विल्हेल्म मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप. ठीक है. Though I did not write the details of this Hamlet and all in this particular section there on my blog, but आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मैं उसमें से रीड करके सुना देता हूँ. Wilhelm Mister's apprenticeship depicts the 18th century German reception of William Shakespeare's dramas. The protagonist is introduced to these by the character Jarno, and extensive discussion of Shakespeare's work occurs within the novel's dialogues. Wilhelm and his theatre group give a production of Hamlet. तो ये आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि उसमें वो कौन से पर्टिकुलर ड्रामा का प्रोडक्शन देते हैं. In which Wilhelm plays the lead role. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. Shakespeare's work had begun to be translated into German in 1940s. ये भी एक थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, और वहां से ये सारे इंटरेस्ट की चीजें डेवलप होती है. ठीक है. अब आ जाइए आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन पे. नेक्स्ट नॉवल लिखिए. दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. अब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी, इसको कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी बोला जाता है. जो भी बिल्डिंग्सरोमन है वहां पे लिख लीजिए. यू कैन सी देयर, I have uploaded some detail on my blog that Bildungsroman is also termed as coming of age novel. ठीक है. तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एक जेंटलमैन बनने की पूरी कहानी है उस नॉवल के अंदर. उसके बाद आ जाइए अमेरिकन नॉवल थर्ड. आप बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है, because I can see very less number of students are present right now. They are watching me. It means only the regular students can watch me. Rest of the students must have left us. जो भी स्टूडेंट्स YouTube पे भी इसको देखेंगे बाद में, इसको पूरा वीडियो को देखना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, मैं बार बार बता रहा हूं, ये केवल एग्जाम तक अपलोडेड है. उसके बाद में इनको लॉक कर दिया जाएगा और या इनको रिमूव कर लिया जाएगा, क्योंकि ये केवल कोरोना क्राइसिस की वजह से, जस्ट टू हेल्प आउट द स्टूडेंट्स. ये मैं बार बार बोल रहा हूं. आप लोग इसको बार बार देखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आप लोग पास हो जाओ इस एग्जाम में. चलिए बताइए मुझे थर्ड नॉवल कौन सा है मेरे ब्लॉग पे इस वक्त इन द लिस्ट ऑफ द बिल्डिंग्सरोमन.
ग्रेट एक्सपेक्टेशन तो पढ़ चुके हैं. थर्ड वन, आई एम आस्किंग अबाउट द थर्ड वन. बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड नॉवल. थर्ड नॉवल का नाम बताइए, तो मुझे पता चलेगा ना आप मेरे साथ साथ रीड कर रहे हो. गो टू द ब्लॉग. माई ब्लॉग इज ऑन माई वेबसाइट mukeshparik.com और दूसरी वेबसाइट है englishcosmos.org. आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर. मैनी आर वॉचिंग मी राइट नाउ. अच्छा, आप लोगों ने कल वो क्विज सॉल्व करके भेजा है, कई स्टूडेंट्स ने. वो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं. मैंने कल आपको एक लॉन्ग क्विज दिया था कल की क्लास के लिए, इसलिए आज के बाद जब भी क्लास नहीं होगी समझ जाना कि उस वक्त आपको एक लंबा सा क्विज भेजा जाएगा. इतने सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे टेस्ट थे उसमें, आपने सॉल्व करके, और सभी स्टूडेंट्स ने लगभग जिनको भी मैंने भेजा है, जो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, उन सबको मैंने ये क्विज भेजा था और उन्होंने उसका आंसर बिल्कुल समय पर दे दिया. दैट्स गुड. इट मीन्स यू आर रियली सीरियस स्टूडेंट्स. आई अप्रिशिएट दिस जेस्चर. अच्छा, आंसर मुझे मिला है एक का आंसर मिला है, द कैचर इन द राय. देखिए, कैचर इन द राय पे क्वेश्चन आ सकता है आपको. कैचर इन द राय इज अ वेरी फेमस अमेरिकन नॉवल. ओके, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी अभी बता दूंगा, बिकॉज रेगुलर स्टूडेंट्स को तो लिंक भेजा जाएगा ना संगीता. इट मीन्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स देयर विल बी ऑलवेज, you people will have always the key to open the locks. Okay, I'm talking about all the other students who have not paid for. They will not be able to watch the videos on YouTube channel from the next month. Okay, because this is called intellectual property. I think you should understand this. Intellectual property. अगर अभी कोरोना में कोई अपने घर से खाना बनाकर दुनिया में बांट रहा है, तो just for the sake of charity, clear? Because people don't have access to food these days. In the same manner, I know that people are unable to attend the classes, and also that's why we have come out of our cocoons and shells and classrooms, and we have giving knowledge to maximum number of students. But that doesn't mean that that is going on after the corona crisis is over. Okay, in the next time people have to pay for taking the classes and all. That has been a trend. Come on. ओके, सो द कैचर इन द राय किसका लिखा हुआ बताइए? J.D. सैलिंजर का लिखा हुआ नॉवल है. और इस नॉवल के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल नॉवल है. लिख लीजिए, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल नॉवल एंड द राइटर हैज शोन इन इट एक लड़का है, किस तरह से वो एक बोर्डिंग हाउस में रहता है. ओके, वो जो किस तरह से अपने स्कूल से उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि वो इज नॉट फीलिंग फिट इन दैट. एंड देन वो कैसे होटल में रुकता है, किस तरह से ही अवॉइड्स द सेक्सुअल एडवांसेस ऑफ हिज ओन टीचर एट टाइम. ओके, ऐसे करके एक पूरी डिटेल की स्टोरी है. और इसके अंदर हो सकता है होल्डन, आपको इसका नाम पूछ सकते हैं, होल्डन कॉलफील्ड. लिख लीजिए, इसके हीरो का नाम है होल्डन, HOLDEN, कॉलफील्ड, CAULFIELD. ओके, याद रहे ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें एक विद्रोह है, एक रेबिलियन है, एक टीनेज का, और ये अमेरिका का बहुत फेमस नॉवल की कैटेगरी में आता है, द कैचर इन द राय. दिस इज ऑल्सो इन द कोर्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. क्लियर? पर जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज के हाल हैं कि टीचर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं नॉवेल्स को, बट दिस पर्टिकुलर नॉवल टेक्स अ लॉट मेनी डेज. अगर मुझे ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए दिए जाए तो आई विल बी टेकिंग मोर देन 10 lectures, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ होल्डन कॉलफील्ड इन दिस नॉवल. ये नॉवल मैंने सुना था शायद कहीं पर, जॉर्ज बुश का बहुत ही ज्यादा फेवरेट नॉवल की कैटेगरी में आता था. ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, देखिए बताइए चौथे नंबर पे कौन सा नॉवल लिखा है मैंने, बताइए. नेम द नॉवल रिटन ऑन माई ब्लॉग अंडर द कैटेगरी ऑफ Bildungsroman. Novel number 4. Can you tell me? Novel number 4 is To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird is again a constant recurrence in our NET exam. It means because it is autobiographical also, it is a Bildungsroman also, and it falls under the category of the apartheid, the literature of apartheid. Clear? Because it's an American novel, and in this novel एक वकील होता है
वो जो वकील है किस तरह से वो मैं बीच में सुजीत मंडल जी आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता, मैं क्लास के बाद आई विल थिंक अबाउट दिस, ऑल ऑफ अ सडन आई कांट डिस्टर्ब माय क्लास, प्लीज काइंडली एक्सक्यूज मी. ओके, चलिए. So what I was talking about that this novel falls, this The To Kill a Mockingbird, clear? हार्पर ली का लिखा हुआ नॉवल है, 1960 में पब्लिश हुआ था और इसको पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ है. इसमें दिखा रखा है कि कैसे एक वाइट नेबरहुड के अंदर किस तरह से एक रेप हो जाता है और किस तरह से एक वाइट वकील एक ब्लैक आदमी का केस लड़ता है, ठीक है, और किस तरह से जो बच्चे हैं घर में उसकी सेंसिबिलिटीज और ये सब डेवलप होती हैं अमेरिका के एक सेटिंग के अंदर. ओके, और इस तरह से एक नॉवल दिखा रखा है. द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर लूजली बेस्ड ऑन लीज ऑब्जर्वेशन ऑफ हर फैमिली, हर नेबर्स एंड एन इवेंट दैट अकर्ड नियर हर होम टाउन, ओके, अल्बामा के पास, when she was 10. तो ऐसे करके ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल की कैटेगरी में आता है. एंड टू किल अ मॉकिंगबर्ड इज हार्पर लीज वर्ल्ड फेमस नॉवल. चलिए, तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज it does not matter that things happen to you in your life. If you are a sensitive person, whatever you are watching around you, you are becoming part and parcel emotionally also about the people living around you. They're also it gives a psychological growth to your persona. So ऐसा इसमें दिखा रखा है. उसके बाद में है द वे ऑफ ऑल फ्लैश. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सैमुअल बटलर का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बिकॉज मैं जब भी क्लास में लेक्चर देता हूं आई कम टू नो दैट स्टूडेंट्स हैव वेरी मीगर रीडिंग ऑफ सैमुअल बटलर. आपने इरहॉन का नाम सुना है? अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है उन स्टूडेंट्स को एक नॉन फिक्शन में मेरे ख्याल से 60 नॉवेल्स का एक पूरा पीडीएफ दे रखा है. अब देखिए उसमें 60 नॉवेल्स की शॉर्ट समरीज हैं और आज उसको आप बैठ करके देखिएगा. उसमें इरहॉन भी है, ठीक है, उसको पढ़िएगा. और द वे ऑफ ऑल फ्लैश एक टाइटल है जो ये लिया गया है, अभी मैं बता देता हूं इसको आपको, बाइबल से लिया गया है. लेकिन इसका जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक इसमें विक्टोरियन सोसाइटी के ये राइटर जो थे, इस राइटर को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन क्या हुआ कि इनकी डेथ के बाद में बर्नार्ड शॉ को आप जानते हो ना, द ग्रेट ड्रामेटिस्ट, उन्होंने इनको एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट कहा. तो उसके बाद में कहते हैं कि इनकी लाइफ के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो गई और इनके नॉवेल्स जो है ऐसे कहते हैं स्लो टाइम बॉम्ब कहा जाता है इनके नॉवेल्स को. स्लो टाइम बॉम्ब इसलिए कि जैसे हमने एक बम पटाखा मान लीजिए उसको छोड़ दिया और हम काफी वेट करते हैं और बहुत देर बाद वो फटता है. तो इसी तरह से इनकी जो फेम है दैट रेस्टेड ऑन द प्रेज ही रिसीव्ड पोस्थुमसली फ्रॉम द माउथ ऑफ दिस राइटर बर्नार्ड शॉ. ओके, तो अब हुआ क्या कि ये बहुत ही इनकी तारीफ जॉर्ज ऑरवेल ने भी की है. लिख लीजिए आप, जॉर्ज ऑरवेल इनकी तारीफ क्यों करते हैं, पहले मैं ये बता देता हूं. अच्छा बताइए, जॉर्ज ऑरवेल का आपने कुछ एसेस पढ़े? उनका एक एसे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा, अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज. जवाब दीजिए पहले मुझे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव read in your post graduation or graduation this world famous essay politics and the English language, George Orwell का? yes or no में जवाब दीजिए. did you come across this essay of George Orwell, politics and English language? नहीं मालूम. अच्छा, कई लोगों ने पढ़ा है. this essay is so famous. आज ही आपको पढ़ना है. ओके, और आप सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, जॉर्ज ऑरवेल की एक सेपरेट पीडीएफ मैंने बना के दी है. सच अ लॉन्ग पीडीएफ, इट टुक डेज टू प्रिपेयर दैट पीडीएफ. आप जाके आप उसको प्लीज पढ़ें, आपको जरूर जॉर्ज ऑरवेल का एक ना दो क्वेश्चन नजर आ जाएगा. आप पीडीएफ जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं जिनके पास मेरा स्टडी मटेरियल नहीं है, व्हाई डोंट यू आस्क मी एंड ऑर्डर फॉर दैट स्टडी मटेरियल, क्योंकि उस स्टडी मटेरियल से ही कई बच्चों के जेआरएफ क्लियर हो गए. तो आप वो पीडीएफ आज जब खोल के देखेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस एसे आल्सो इन दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एसे. मैं इस एसे को हो सकता है कल ही पढ़ा दूं आपको, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये है कि जॉर्ज ऑरवेल ने पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैज गिवन अस 6 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एट द एंड ऑफ द एसे. He says that if you are writing in a simple English and writing in small sentences, if longer sentences are not needed, it means you are really a good writer.
okay, and it means you are using English in a very say original manner and in a very creative manner. Okay, उस ऐसे का जो सारांश है, ऐसे का जो समरी है, वो ये है कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि हम रटे रटाए जो पहले से idioms और phrases हैं, चाहे वो अपने देश के हो चाहे वो विदेशी हो, we should avoid them and we should write in active voice, and we should not write in passive voice. और उसके बाद उन्होंने एक चीज लिखी है कि अगर आप छोटे सेंटेंस लिख सकते हो तो कोई जरूरत नहीं कि आप लंबे सेंटेंस लिखो। और ये जो राइटर है सैमुअल बटलर, जिनका ऑल द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ये नॉवल इतनी ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और आपको पता है ना, एक कहीं ना कहीं वी आर ऑल कॉलोनाइज्ड। समटाइम्स वी फील दैट इफ somebody is writing in a very easy language, then we feel that he is not a writer at all if he is not writing in tough sentences. एग्जाम में भी अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा हाई फाई वोकैबुलरी शो नहीं कर रहा है तो हमको लगता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप बड़े वर्ड यूज कर रहे हो, you come to know about this depth of a language when you become mature. Okay, that there is no need to write in hi-fi language. Even आप अपनी मदर टंग में भी बहुत गहरी बात कह सकते हो। और कहते ही है, मेरे ख्याल से हम लोग सारी जिंदगी की जो फिलॉसफी है, लोगों की जो साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑल डन with our own language, with our mother tongue, at our side. तो राइटर जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है द वे ऑफ ऑल फ्लैश नॉवल की, ये लिख लीजिए आप। और सैमुअल बटलर ने इसमें द हिपोक्रेसीज ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है आज। इन माई अदर लेक्चर्स ऑल्सो आई टॉक्ड अबाउट दिस विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। आपको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज का पता होना चाहिए बच्चों। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। ऐसा कहा जाता है कि विक्टोरियन सोसाइटी ऑन द सरफेस लेवल वाज द मोस्ट प्रॉस्परस एंड स्मूथली गोइंग सोसाइटी। ओके, बट there are certain writers who went inside and connotatively they have showed us the actual picture of Victorian society, which was not as much healthy psychologically, morally, economically, as they claim. Okay, तो इसलिए ये नॉवल फेमस है। इसका जो हीरो का नाम लिख लीजिए, अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स। राइट डाउन, अर्नेस्ट, इसका पूरा नाम ही यही है, अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स और द वे ऑफ ऑल फ्लैश। ठीक है, इसमें एक पूरा डिटेल 3 जनरेशन की स्टोरी आती है। और वो जो राइटर है वो इसने इस बुक को तभी पब्लिश किया जब वो पॉस्टमस पब्लिकेशन है ये, मतलब क्योंकि इसने ही हैज क्रिएटेड द फिगर्स ऑफ हिज ओन सिस्टर्स इन द नॉवल। ओके, so he did not want that his sisters come to know about what he thought about them. लेकिन आपको तो पता ही है कि हिपोक्रेसी से भरे होते हैं हम लोग। हम अपने घरों के अंदर भी, हम अपने करियर में भी, हमारे आसपास के लोगों के साथ भी, हम उनके मुंह के सामने तो उनकी बोलते हैं और पीछे से हम उनकी बुराई करते हैं। मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। और दैट दिस इज द रीजन दैट आई हैव बीन रनिंग सिंगल हैंडेडली माय इंस्टीट्यूट, बिकॉज व्हेनेवर इन माय लाइफ आई जॉइंड एनी कॉलेज आई फाउंड इट वाज ऑल स्टफ्ड विद पॉलिटिक्स ऑल द टाइम। मतलब कितने सारे मास्क लोग ओढ़ के रखते हैं। सो दिस नॉवल इज वर्ल्ड फेमस अगैन एंड इन दिस नॉवल द राइटर, देखिए इसमें एक कहानी को मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि एक राइटर है, ये जो लड़का है इसके पेरेंट्स इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। तो इसके बाद में ये किस तरह से उसके जब पेरेंट्स, फादर की शायद डेथ हो जाती है और ये अपना घर छोड़ देता है। अच्छा, इसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि ये एक प्रीस्ट बने और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीस्ट बनने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन ये शायद गलत फहमी में आकर के और एक सेक्सुअल बेनिफिट उठा लेता है एक लड़की का, मतलब रेप करता है शुद्ध भाषा में बोलूँ तो। और फिर वो उसको जेल हो जाती है और फिर जब वो बाहर आता है तो वो अपनी ही सर्वेंट, जो कि एक सर्वेंट होती है, उसकी लड़की होती है शायद, उससे शादी कर लेता है और कपड़े सिलने का काम स्टार्ट कर देता है, सेकेंड हैंड जो कपड़े होते हैं। फिर बाद में इसकी एक आंट होती है, वो इसके लिए कुछ इनहेरिटेंस छोड़ जाती है। जब वो उसको मिलती है तो फिर वो वापस से ये सारी चीजें छोड़कर उस लड़की को भी वो छोड़ता है, क्योंकि वो लड़की जिससे ये शादी करता है, शी इज ऑल्सो बाइगेमस, okay, and she smokes also and she pretends that she is not what she is actually. So there are so many masks he comes to aware of in the novel. तो धीरे धीरे इसको लाइफ का एक रियलाइजेशन होता है और ऐसा करके एक कहानी दिखा रखी है। उसके बाद आ जाइए, आपने E.M. फोस्टर का नाम जरूर सुना होगा।
ईएम फोस्टर का एक बहुत लेसर नोन नॉवल है, ये आपको ऑप्शन में जरूर दिखाया, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट जर्नी। सबसे पहले तो लिखिए द लॉन्गेस्ट जर्नी जो है वो जो टाइटल है वो शैली से लिया है, लिख लीजिए द टर्म द लॉन्गेस्ट जर्नी, द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम पर्सी बीश शेली। पर्सी बीश शेली का नाम सुना है आप लोगों ने? यस तो लिखिए फटाफट। पर्सी बीश शेलीज फेमस पोएम एपीसाइकिडियन, एपीसाइकिडियन, EPIPSYCHIDION, एपिसाइकिडियन लिख लीजिए। उसमें लास्ट में ये लाइन आती है द डियरिएस्ट एंड लॉन्गेस्ट जर्नी गो। अब ये कहानी क्या है, इसके हीरो का नाम लिखिए। इसमें क्या दिखाया गया है, एक रिकी एलियट करके कैरेक्टर है, रिकी एलियट, RICKIE, रिकी एलियट। ओके, अब रिकी एलियट का किस तरह से एक सेंसिटिव लड़का है, जैसे आपने पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन के अंदर हम देखते हैं ना, वो जो हीरो है वो फुटबॉल नहीं खेलता है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू नो देयर इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिविटी इज शोन। तो आपको पता होना चाहिए कि रुडयार्ड किपलिंग के साथ भी ऐसा ही था, EM फोस्टर के साथ भी ऐसा ही था, जॉर्ज ऑरवेल के साथ भी ऐसा ही था। जॉर्ज ऑरवेल का वो ऐसे पढ़ा है आप लोगों ने, द शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट। आज आपको सबको एक काम करना है, यस लिख के बताइए, जो भी पेड स्टूडेंट देख रहे हैं, जो मेरे ऑनलाइन क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, आज आप जॉर्ज ऑरवेल की पीडीएफ और EM फोस्टर की पीडीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको क्विज दूंगा उसका आने वाले दिनों में। एग्जाम सिर पर है आपके, EM फोस्टर एंड जॉर्ज ऑरवेल, इन दोनों की पीडीएफ आप जरूर पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो रिकी एलियट का ऐसे दिखा रखा है कि वो एक सॉफ्ट हार्टेड, सेंसिटिव, थोड़ा सा यू नो other than you know the claimed masculine qualities से हट करके थोड़ा लड़का है, ठीक है। claimed masculine क्या होता है भाई, ज्यादा शोर नहीं मचाना ज्यादा, तो वो ऑब्वियसली जो बिग बुलीज होते हैं उनका ये शिकार हो जाता है, और फिर बाद में धीरे धीरे ये राइटर बनना चाहता है, दिखाया है फिर किस तरह से इसको ये पता चलता है कि इसकी अच्छा इसके जो फादर हैं वो उसकी मदर को छोड़ देते हैं, तो इसमें फिर वो बाद में दोनों ही उनकी डेथ हो जाती है, ऑर्फन है। तो किस तरह से इसको बाद में पता चलता है एक आंटी के थ्रू कि इसका एक भाई है। पहले तो ये सोचता है कि ये मेरा फादर का एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो वो नफरत करता है अपने फादर से हमेशा से, लेकिन बहुत बाद में उसे ये पता चलता है कि ये मेरे मदर का लड़का है, मतलब मेरी ही मम्मी का, जिसको माजाया बोलते हैं। ओके, द बॉय बॉर्न ऑफ द सेम मदर। तो फिर धीरे धीरे इसको ये रियलाइजेशन होता है और वो क्या करता है, इसकी शादी हो जाती है और वो जो लड़की है वो काफी डोमिनेटिंग है, ये अपनी शादी वादी को छोड़ करके और अपने भाई को, अच्छा वो जो भाई है वो काफी ज्यादा शराब वगैरह पीने लगता है और वो उसको बचाता है। एक दिन ये शायद रेलवे के आसपास ये बेहोश भाई को उठा रहा है, तो रेलवे एक्सीडेंट में ये मर जाता है हमारा। तो ये पता होना चाहिए, रिकी एलियट की डेथ हो जाती है और वो जो एक कहानी लिख रहा है, एक वो बाद में फिर इसका जो ब्रदर है वो उसको पब्लिश करवाता है। ऐसे करके पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी आप पढ़ोगे तो, एंड देन यू कम टू नो दैट यू नो हाउ सेंसिटिव दिस नॉवल हैज बीन रिटन, ठीक है। और तो ये भी एक बिल्डुंग्सरोमन है उस तरह से देखा जाए तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अच्छा, मैं अभी बहुत सारे नॉवेल्स के नाम ले सकता हूं, जैसे जेन आयर है, एमा है, लिख लीजिए जेन आयर है। जेन आयर में आपने देखा होगा कि जो हमारी एपोनिमस कैरेक्टर है किस तरह से वो ऑर्फन है, किस तरह से वो अपने मामा जी के यहाँ रहती है, मामा जी की डेथ हो गई है तो उसकी जो मामी है वो किस तरह से उसके बच्चे इसको पीटते हैं, देन यू नो शी इज सेंट टू अ स्कूल। मैं किसी न किसी लेक्चर में ये स्टोरी डिटेल में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो किस तरह से वो लड़की यू नो शी कम्स टू नो अबाउट लाइफ, फिर वो रॉचेस्टर के घर आ जाती है उसकी लड़की को पढ़ाने के लिए, बड़ी होकर के गवर्नेंस बन करके। फिर आपको मालूम है कि किस तरह से वो ऑलरेडी शादीशुदा है, देन शी लीव्स हिम बट यू नो शी फॉल्स इन लव with the same person, and then ultimately at the end of the novel she comes back to the same person. So overall पूरे नॉवल में दिखाने की कोशिश की गई है कि now she knows the world, that you know what she feels good in and she should follow her heart. शार्लेट ब्रॉन्टे का लिखा हुआ ये वर्ल्ड फेमस नॉवल है, ठीक है। अच्छा, तो एमा के बारे में क्या जानते हो बताओ? जेन ऑस्टन का लिखा हुआ एमा। एमा जो है शी बिलोंग्स टू एमा वुड हाउस, she belongs to a very aristocratic kind of class, not aristocratic but you know landed जो जेंट्री होती है गाँव में, मतलब जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है,
किस तरह से वो मैच फिक्सिंग करती रहती है पूरे गांव में। उसको उसको ये नहीं पता कि कौन कैसा फील कर रहा है। ये मैच फिक्सिंग का मतलब होता है शादियां तय कराती रहती है। बट देन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द नॉवल शी कम्स टू नो अबाउट हर ओन फीलिंग्स। ओके, सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डुंग्सरोमन। ऐसे देखा जाए तो और भी कई नॉवेल्स हैं जेन ऑस्टन के लगभग सभी नॉवेल्स के अंदर, जैसे मैन्सफील्ड पार्क है, उसके अंदर भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मेन फैनी प्राइस है, शी कम्स टू नो लाइक व्हाट दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट हर अराउंड हर। तो ऐसे करके बहुत सारे बिल्डुंग्सरोमन की कैटेगरी के नॉवेल्स हैं दुनिया में। तो ये काफी लंबा लेक्चर हो गया। अब आप पढ़िए, अचानक से हम एक नई चीज पर आ रहे हैं, लिखिए फटाफट से, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोरल कैरेक्टर, वेबसाइट पे आ जाइए, वेबसाइट पे ब्लॉग पे देखिए, मैंने 2 पिक्चर्स डाल रखी हैं एंड आई विल बी रीडिंग फ्रॉम दैट। आप क्योंकि आई कांट आस्क यू टू परचेज डिफरेंट बुक्स, सो आई हैव अपलोडेड 2 photographs फ्रॉम अ बुक एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम दैट। ओके, व्हाट इज अ कोरल कैरेक्टर? पहले आप इतना सा समझ लीजिए कि जो कोरस होता था ग्रीक ट्रेजेडीज में, आपको पता है कोरस हुआ करता था, और कोरस जो होता था वो कमेंट्री करने का काम करता था, और बिफोर द प्ले एंड आफ्टर द प्ले सर्टेन इवेंट्स हैड अकर्ड एंड दीज इंसिडेंट्स आर रिलेटेड और नरेटेड टू द ऑडियंस बाय द कोरस। ओके, बट व्हाट इज कोरल कैरेक्टर? कोरल कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर इन अ नॉवल, particularly in novel. Okay, that kind of character, जैसे निक कैरवे का नाम सुना है आपने? लिख लीजिए, निक कैरवे। ग्रेट गैट्सबी में निक कैरवे इज टेलिंग अस द होल स्टोरी, क्लियर? सो ही इज कमेंटिंग, he is criticizing, he is throwing light on every character, the background of every character, and omniscient narration इसमें होता है। चलिए, नरेशन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि जब भी हम लोग कोई लेक्चर टच करते हैं, कोई टॉपिक टच करते हैं, तो जिसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स अ टीचर कैन टीच यू। चलिए बताइए, नरेशन और पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? लिखिए पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है ऑमनिशेंट नैरेटर। ऑमनिशेंट नैरेटर, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए, नैरेटर कई तरह का होता है। एक नैरेटर होता है जो रियलिस्टिक नॉवल में आपको वो सब दिखा रहा है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है? लेकिन आपने देखा है कई बार ही हैज एन इन डेप्थ एक्सेस टू द द नॉलेज ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन अंडर द साइकी ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो। ओके, जैसे मान लीजिए ऑमनिशेंट नैरेटर गॉड की तरह होता है। मतलब जैसे एक गाना है, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, पूजा भट्ट की फिल्म है। आपने अगर कभी वो गाना देखा है, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी, मैंने वो गाना देख रखा है। उसमें ऐसे दिखा रखा है कि वो कभी कभी मिलने आता है उसकी मदर से, उसका हस्बैंड, या शायद वो उसकी कीप है। तो ये लड़का देख रहा है कि फादर आए हैं और वो उसकी मदर के साथ में कमरे में बंद है। अच्छा, अब कैमरा अंदर नहीं जा रहा है। अब हम आम मूवीज में तो क्या देखते हैं कि दरवाजा बंद हो गया तो हमें अंदर की चीज भी दिखाने लग गए। बट बहुत ही अगर रियलिस्टिकली या आर्टिस्टिकली अगर हम देखें तो द नैरेटर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, ओके, एंड द डोर इज क्लोज्ड फ्रॉम इनसाइड। तो आपको पता है कि वो अंदर की चीज नहीं दिखा सकता। ही कैन जस्ट ओनली टॉक अबाउट, कंजेक्चर अबाउट, कैन जस्ट थिंक अबाउट। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है कि ऑमनिशेंट नैरेटर जो है वो होगा तो वो आपको कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो भी बता रहा है। बट अगर ऑमनिशेंट नैरेटर नहीं है तो वो केवल आपको इतना बताएगा कि भाई मैं बाहर खड़ा हूं और अंदर मम्मी डैडी है। समझ में आ रहा है आपको? इससे पता चलता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नैरेटर्स आर देयर। ओके, सो जो कोरल कैरेक्टर होता है वो ऑमनिशेंट नैरेटर लिए हुए होता है, ठीक है? ऑमनिशेंट नैरेटिव टेक्निक, हाँ, वो आपके सिलेबस में होगी लगून जरूर, इसलिए आप कह रही हैं शत्रुपा। चलिए अब फटाफट से आइए, मैं पढ़ रहा हूं उसमें से कोरल कैरेक्टर के बारे में। पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है कोरल कैरेक्टर के अंदर। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करिए। देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, मेरी बुक में वो इधर उधर हो गया है। या नाउ आई एम रीडिंग। Among the ancient Greeks, the chorus was a group of people wearing masks. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रीक ट्रेजेडीज होती थी उसमें कोरस हमेशा मास्क पहन के रखते थे। Who sang or chanted verses while performing dance-like movement at religious festivals. A similar chorus played a part in Greek tragedies where in the play of Aeschylus and Sophocles. तो बड़े बड़े एस्कलिस और सोफोक्लिस की पीडीएफ आपको मिल चुकी है वर्ल्ड लिटरेचर के कैटेगरी में। ये दोनों पीडीएफ भी आपको डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए, ओके, एग्जाम से पहले पहले।
They served mainly as commentators on the dramatic actions and events who expressed traditional moral, religious and social attitudes. ठीक है, इसका मतलब है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं. जैसे आपको, अगर आपने इडिपस रेक्स पढ़ा है, हैव यू रेड इडिपस रेक्स रिटन बाय सोफोक्लिस? इडिपस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ द प्ले स्टार्ट्स. तो उसके अंदर सबसे पहले यही दिखा रखा है कि जो लोग हैं वो अपने हाथ में कुछ पूजा के लिए कुछ डंडे ले करके और अपोलो की के मंदिर की तरफ जा रहे हैं. और वी आर टोल्ड बाय द कोरस दैट समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड इन द लैंड. ओके, तो ये कोरस का काम होता है. आगे लिखा हुआ है, पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है. हाउएवर द कोरस अज्यूम्ड प्राइमरली अ लिरिकल फंक्शन. लिरिकल फंक्शन का भी काम करते हैं. दे सिंग whatever they tell us in the drama, they tell it by singing. okay, और वो जो गाते हैं उसको ओड कहा जाता है. देखो, ओड की डेफिनेशन भी आपको पता है. ओड के अंदर एक होता है स्ट्रोफे, एक होता है एंटी स्ट्रोफे और एक होता है एपोड. कितने स्टूडेंट्स जिनको पता है कि जो ओड होती है, जो ट्रेडिशनल ओड होती है, क्लासिकल ओड होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं. स्ट्रोफे, STROPHE, एंटी स्ट्रोफे और एपोड. तो स्ट्रोफे में वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, एंटी स्ट्रोफे में वो राइट हैंड साइड में, और एपोड में वो स्टैंड हो जाते हैं बीच में. ओके, बट दे कीप सिंगिंग देयर स्टोरी वट एवर दे आर टेलिंग टू द वर्ल्ड और द ऑडियंस. सॉरी, आगे लिखा हुआ है द ग्रीक ओड एज डेवलप्ड बाय पिंडार. अब एक नया पॉइंट आया, आप आज इसे नोट्स बना लीजिएगा कि पिंडार ने डेवलप किया था ओड को, जिसको पिंडारिक ओड बोलते हैं हम लोग. वॉज ऑल्सो चैंटेड बाय कोरस. ठीक है, इन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी. अभी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, फ्रेडरिक नीश की बुक है जिसमें से अपोलोनियन और डायनोसियन वर्ड्स मैंने आपको सिखाए थे. हाँ ना में जवाब दीजिए. फ्रेडरिक नीश की लिखी हुई बुक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, पब्लिश्ड इन 1872. द जर्मन क्लासिसिस्ट एंड फिलोसोफर फ्रेडरिक नीश स्पेक्युलेटेड दैट एट द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी द कोरस कंसिस्टिंग ऑफ गोट लाइक सेटर्स. सेटर्स समझते हो ना, वो जो आदमी की शक्ल के होते हैं, आधे गोट और आधे इंसान, उनको सेटर्स बोलते हैं. नार्निया फिल्म में आपने एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स देखे होंगे ना. तो जैसे उनका मुंह भेड़ का है या उनका मुंह आदमी का है, तो पैर उनके जो है जिसमें हूफ्स हैं, उनको सेटर्स कहा जाता है, SATYRS. ठीक है, बट द ओनली फिगर्स ऑन द स्टेज. मतलब के सेटर्स यानी कि गॉड्स के रूप में, सेमी गॉड्स के रूप में कोई मुखौटा ओढ़ करके, और कोरस ये नॉवल ड्रामा के अंदर की डिटेल बताया करते थे. ठीक है, दे वर प्रेजेंटेड एज अटेंडेंट्स एंड विटनेसेस ऑफ द सफरिंग, डेथ एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर मास्टर द गॉड डायनोसिस. ठीक है, मतलब जो सेटर्स हैं, उनका जो गॉड है डायनोसिस, उसके चेंजेस के बारे में ये हमें बताते हैं. ठीक है, लेटर in Nietzsche's view, actors were introduced to enact the event that had originally been represented only symbolically, and the chorus was reduced to the role of commentator. Okay, तो उसके बाद में ये बीच में कौन आया क्लास के? You should attend the class regularly at 10 o'clock. I'm reading from my blog. I have uploaded something there. I'm reading from there. Miss I can't read this name, I'm sorry. And you can go to my website mukeshparikh.com or englishcosmos.org. I have my blog there. You will find 2 photographs of some pages. I'm reading from there. Okay, I'm reading about choral character, or say chorus. Roman playwrights. So this was all about the Greek writers. Now let us come to Roman. Roman playwrights such as Seneca took over the chorus from the Greeks. And in the mid-16th century, some English dramatists, for example, Norton and Sackville, जिन्होंने गॉर्बोडोक लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए, imitated the Senecan chorus. इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीक कल्चर में ही कोरस था. That chorus also, trickled down to the Roman, dramas, and from Roman dramas, Seneca ने उसको ले लिया, and from Seneca, it came to England. The classical type of chorus was never widely adopted by English dramatic writers. John Milton, however, included a chorus in Samson Agonists. 1671 में Samson Agonist एक
उन्होंने मास्क लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए. एज डिड शेली इन प्रोमीथियस अनबाउंड. प्रोमीथियस अनबाउंड एक क्लोजेट ड्रामा है, लिखते जाइए फटाफट से. क्लोजेट ड्रामा इज अ ड्रामा विच इज ओनली रिटन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. क्लोजेट मैंने कमरा, कमरे में बैठकर केवल रीड, उसको परफॉर्म नहीं कराया जाता है. तो 4 एक्ट में लिखा हुआ ये प्रोमीथियस अनबाउंड है. ये वही ड्रामा है शैली का जिसके साथ में द वेस्ट ओड टू द वेस्ट विंड पब्लिश हुई थी. ओके, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड टॉमस हार्डी इन द डायनेस्ट. आपको मालूम है कि टॉमस हार्डी हु इज अ नॉवेलिस्ट इज फेमस फॉर राइटिंग अ लॉन्ग प्ले. इट्स नेम इज द डायनेस्ट. अब ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं. द डायनेस्ट पब्लिश्ड इन 1904 to 1908. More recently, T.S. Eliot made effective use of the classical chorus in his religious tragedy, Murder in the Cathedral. अब हम लास्ट क्लास में एलियट पढ़ रहे थे, आपको मालूम है, पर हम नेक्स्ट क्लास में एलियट को कंटिन्यूसली नहीं किया बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी उसका क्विज दे दिया था. मर्डर इन द कैथेड्रल एक बहुत ही फेमस नॉवल है, ड्रामा है. इसको वर्स प्ले बोलते हैं, ठीक है. मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है. इसमें उन्होंने कोरस का यूज किया और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कोरस कौन है. तो जो टाउन्स विमेन हैं दे टेक पार्ट at 10 o'clock. I take class at 10 o'clock. Yeah, I'm sorry, somebody is asking me questions in between the class. What I was talking about, that Murder in the Cathedral, written by T.S. Eliot, a verse play. In this play, there was a question in the exam that who plays the part of chorus. So the townswomen play the part of chorus in this play. ये सब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. I'm telling you all these things. The use in drama of a chorus of singers and dancers survives also in operas and musical comedies. Clear? During the Elizabethan age, the term chorus was applied also to a single person. If you remember, I was reading the whole play, Dr. Faustus, and I told you that in that play there is a single person who works as a character, or as a choral character, or as a chorus. One thing, if you remember Romeo and Juliet, there comes a single character, and through this sonnet he comes and tells us, like, you know, about the Romeo and Juliet, the star-crossed lovers. Okay, so there also we come across a single character who works as a chorus. So you should not you should not think that chorus is always a group of characters. Okay, there are certain changes where a single person can also, you know, work as chorus. Okay, so epilogue और prologue बोलने का काम वही करते हैं. आगे पढ़ रहा हूँ, देखिए. Introduced each actor. This character served as the author's vehicle. Chorus का काम क्या होता है? He works as a vehicle of the commentary on the play by the writer, as well as for exposition of its subject, its time, its setting, and the description of events happenings off stage. Example, Christopher Marlowe's Dr. Faustus. I have already given you the example. Henry V लिखो. Henry V शेक्सपियर का उसमें दिख रहा है आपको. Winter's Tale in the 5th act. Winter's Tale लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर का. Today, I think yesterday I gave you a complete PDF of all the Shakespeare's plays. आज आपको मिलेगी शेक्सपियर के सारे प्लेस के मेजर MCQs. बहुत बड़ी PDF मैंने बनाई है. मैं 4-5 दिनों से लगातार काम कर रहा था, जिसमें you will get the MCQs of all the. Now I am working on the books of MCQs. ओके, उससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो जाएगा. ओके, सो विंटर्स टेल द 5th एक्ट बिगिंस विद टाइम द कोरस. अभी क्वेश्चन भी आया हुआ नेट के अंदर कि टाइम जो है कोरस का काम कौन से प्ले में करता है. दैट इज इन द विंटर्स टेल. हु रिक्वेस्ट द ऑडियंस दैट दे इम्प्यूट इट नॉट अ क्राइम टू मी और माई स्विफ्ट पैसेज दैट आई स्लाइड. तो टाइम, जैसे महाभारत जब सीरियल चलता है तो उसमें एक पहिया घूमता रहता है ना, व्हील, और वो बोलता है मैं समय हूं. ओके, ऐसे ही कोरल कैरेक्टर का काम क्या होता है, वो नॉवल के अंदर हमें बहुत सारी इवेंट्स के बारे में बताता है. अब आ जाइए. मॉडर्न स्कॉलर्स यूज द टर्म कोरल कैरेक्टर टू रेफर टू अ पर्सन विद इन द प्ले, ओके, itself who stands apart from the action by his or her comments, provides the audience with a special perspective. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग समथिंग, एंड व्हेन यू लिसन टू माय कमेंट्री ऑन द प्ले और माय कमेंट्री ऑन नॉवल, देन यू कम टू नो, you develop a different kind of psyche or understanding about that particular play. तो ये जरूरी है. जैसे फूल है ना, आपने देखा होगा, फूल लिखा हुआ है आगे. Fool as a character in King Lear by Shakespeare.
Enobarbus, Antonio and Cleopatra में है. He does not, participate much in the play, but somewhere his commentary gives you a very different insight into the character of the characters. Okay, Thersites in Troilus and Cressida written by Shakespeare. A modern instance is Seth Beckwith. ये नाम एग्जाम में पूछा गया है, SETH, कि सेठ, हम अगर हिंदी में बोले तो सेठ बोलूंगा, अदरवाइज इट इज सेथ, SETH. सेथ बैकविथ इन यूजीन ओनील का जो ड्रामा है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, नॉवल है, सॉरी, मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. लिख लीजिए इसको, आज आपको पढ़ना है. मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. मुझे मत कहना इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इट. 1931 में पब्लिश हुआ. कोरल कैरेक्टर इज समटाइम्स अप्लाइड ऑल्सो टू वन और मोर पर्सन्स in a novel who represents the point of view of a community or of a cultural group, okay, and so provide norms by which to judge the other characters. जैसे टॉमस हार्डी का peasants and the old black women in some of William Faulkner's novels, okay. और मैंने अभी आपको बता ही दिया है निक कैरवे के बारे में, हु इज अ कोरल कैरेक्टर, ठीक है. So this I read something about chorus and choral character which must have given you some insight, and you will come across many different things. Clear? तो आज की क्लास में it's already 1 hour and 14 minutes. मैं कल आपको कुछ और नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा. We'll be reading another important writer and maximum number of poems written by that writer. That's it for today. Thank you so much.